हेडिंग लिखो एवोल्यूशन। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, evolutionary biology. Evolutionary biology is the branch of science. Evolutionary biology is the branch of science that deals with. Evolutionary biology is the branch of science that deals with history of life, history of life produced on earth, produced on earth. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, to explain origin of earth, to explain origin of earth, many theories were given, many theories were given, but the most accepted theory is, but the most accepted theory is Big Bang theory. Big Bang theory, according to which a huge explosion occur, due to which a large number of galaxies were developed. A large number of galaxies were developed by the condensation of hydrogen and helium, by the condensation of hydrogen and helium. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, our earth belongs to Milky Way galaxy. And supposed to be developed, our earth belongs to Milky Way galaxy and supposed to be developed 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago. एक पॉइंट कॉपी के टॉप पर लिखो, यूनिवर्स was supposed to originate, universe was supposed to originate, universe was supposed to originate 20 billion years ago. 20 billion years ago. एक पॉइंट और लिखो कॉपी के ऊपर, stellar distance are measured in, stellar distance are measured in what?
लाइट ईयर्स लिख लो. स्टीलर डिस्टेंस स्टार्स. स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. There was no atmosphere. There was no atmosphere during the origin of Earth. There was no atmosphere during the origin of Earth. लिखो next point. Later on, water vapor, comma, carbon dioxide, water vapor, comma, carbon dioxide, comma, methane and ammonia were developed by molten mass present on Earth's surface. Molten mass present on Earth's surface. लिखो next point. Due to presence of, ऐसे लिखो, due to incidence of UV rays, due to incidence of UV rays, water molecules undergo breakdown. Water molecules undergo breakdown into hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen. Next point लिखो. Due to its light weight, hydrogen escaped out and oxygen combined with water, oxygen combined with ammonia and methane to produce carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. यहीं पर एक पॉइंट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है. There was no free oxygen at the time of origin of Earth. There was no free oxygen. जितना भी ऑक्सीजन था या तो वो वाटर के फॉर्म में था या CO2 के फॉर्म में था. There was no free oxygen at the time of origin of Earth. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. Later on, ozone layer were developed. Later on, ozone layer were developed. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है. The first life was originated on Earth. The first life was originated on Earth 500 million years after 500 million years after the origin of Earth.
500 million years after the origin of earth, ब्रैकेट में लिख लो 4 billion years ago. अर्थ थी 4.5, 0.5 यानी 500 मिलियन. ठीक है, तो अर्थ की ओरिजिन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद क्या बनी? लाइफ. दैट मींस 4 बिलियन ईयर्स एगो. एक बार सारे पॉइंट्स रीड करो. ये जनरल पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं कभी कभी स्टेटमेंट वाइज. बोर्ड लेवल पर सिर्फ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की डेफिनेशन, बिग बैंग थ्योरी का नेम और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी इनिशियल एनवायरनमेंट में, ये पूछा गया है कई बार. एक पॉइंट कॉपी के टॉप पर और लिखो. द फर्स्ट लाइफ वॉज appeared in water only. The first life on earth was appeared in water only. The first life on earth was appeared in water only. हाँ, पहले अर्थ ऑरिजिनेट हुई यूनिवर्स में जब ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद उस पर लाइफ बनी. बिग बैंग थ्योरी तो अभी दी गई होगी जिसने एक्सप्लेन किया कि ऐसा हुआ होगा. सब इमेजिनरी है. Now write down first heading, origin of life. Origin of life. लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, to explain origin of life on earth. To explain origin of life on earth, a large number of theories were given. A large number of theories were given. पहली लिखो फॉर एग्जाम्पल करके. फर्स्ट, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, this theory was given by Father Suarez. This theory was given by Father Suarez. According to him, the first life, according to him, the first life appeared on earth. The first life appeared on earth due to a special power. Due to a special power, that is God. एक छोटी सी हेडिंग लिखो, पोस्टुलेट्स. क्या क्या पॉइंट्स थे इस थ्योरी के? 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पूछे जाते हैं. पोस्टुलेट्स लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, all the organisms which are present on earth, all the organisms which are present on earth were created
all the organisms which are present on earth were created in similar form during the origin. मतलब जब जितने ऑर्गेनिज्म अभी हैं वो सारे जब अर्थ की ओरिजिन हुई एक साथ ओरिजिनेट हुए थे. ठीक है ना. ऐसे नहीं हुआ कि पहले वायरस आया फिर प्रोकैरियोट्स फिर यूकैरियोट्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ. सारी सेल्स एक साथ डेवलप हुई. क्लियर ये पॉइंट्स. लिखो सेकंड. टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज developed at the time of origin are still same in present and will be same in future also. कोई चेंजेस नहीं हुआ स्पीसीज डायवर्सिटी में. are same in present and will be same in future also. मतलब जब अर्थ ओरिजिन हुई, आज का टाइम ले लो और फ्यूचर, सब टाइम पर स्पीसीज डायवर्सिटी कैसी थी? सेम. ये इन्होंने बताया. लिखो थर्ड पॉइंट. अर्थ वॉज सपोज टू ओरिजिनेट 4000 years ago only. Earth was supposed to originate 4000 years ago. तो फर्स्ट थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके अकॉर्डिंग जो अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई दैट इज ड्यू टू अ सुपर नेचुरल पावर दैट इज गॉड. और तीन पॉस्टुलेट्स थे कि जो ऑर्गेनिज्म आज प्रेजेंट है वो एज सच ओरिजिन के टाइम पर भी थे. स्पीसीज डायवर्सिटी पहले की, अब की और फ्यूचर में कैसी रहेगी? और अर्थ की ओरिजिन कितनी पहले हुई? 4000 ईयर्स. क्लियर ये पॉइंट. लिखो सेकंड थ्योरी. थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया. पैनस्पर्मिया. लिखो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी life was originated on earth in the form of spores. Life was originated on earth in the form of spores which came from another planet. You can say alien species. Okay. ये तो और ही गजब थी. लिखो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. नहीं, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. इन्होंने तो ये बोला था कि अगर डर्टी शर्ट को अपन रख दें तो उससे चूहे बन जाते हैं. लिखो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. लिखो इसमें इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में लिखो, ये पूछी जाती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. लिखो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी life was originated by non-living things.
life was originated by non-living things. For example, when wheat grains are put along with human sweat, wheat grains are put along with human sweat, then mice was developed. जब हम गोडाउन्स की बात करते हैं ना, तो गोडाउन्स में जहां पर व्हीट स्टोर होता है वहां पर ह्यूमिडिटी होती है। आप उसको हर जगह से बंद करके रखो, चूहे तो आ ही जाते हैं नीचे से। अब गेट खोलोगे तो चूहे बाहर निकलेंगे निकलेंगे, इसका मतलब है ना चूहे उससे व्हीट से निकल के आ गए। तो उनको यही लगा था। तो ह्यूमन स्वेट कैसे आते हैं? ह्यूमिडिटी, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। The theory of abiogenesis disproved by Louis Pasteur, फ्रांसिस्को रेड्डी एंड एस्प्लैंजिनी। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये नेम है, बट अगर ये दोनों भी आ गए तो थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। लुइस पास्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी एंड एस्प्लैंजिनी। लिखो इसमें, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट Pasteur used swan-necked flask. Pasteur used swan-necked pre-sterilized flask लिखना, swan-necked pre-sterilized flask। उसको स्टरलाइज इसलिए किया गया ताकि उसमें कोई माइक्रोब ना रह जाए। फ्लास्क, देखो सुनो, साइंटिस्टों ने बोला था कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो नॉन लिविंग थिंग से हुई, ठीक है। अब लुइस पास्चर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया इस पर? उन्होंने एक फ्लास्क में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ईस्ट को यूज किया। किसको यूज किया? ईस्ट को। इसको हीट किया प्रॉपर, ओके। कुछ टाइम तक इसको ऐसे ही ओपन रख दिया, छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद जब देखा गया तो इसके अंदर कुछ फ्लाइज वगैरह डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? फ्लाइज। क्लियर ये पॉइंट? जो इसके पहले साइंटिस्ट थे वो यही लेकर चल रहे थे कि ये हो गया अपना नॉन लिविंग कंपोनेंट, इससे क्या बन गया? लिविंग कंपोनेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें सेम न्यूट्रिएंट्स लिए, ईस्ट, सेम प्रोसीजर, बट यहां पर जो फ्लास्क था वो कैसा था? उसकी नेक इस तरीके से थी, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जब इस फ्लास्क को ऑब्जर्व किया गया तो उसमें फ्लाइज यहां की जगह यहां पर थी। इससे क्या प्रूव हुआ कि यहां पर फ्लाइज यहां से डेवलप नहीं हुई, ये बाहर से यहां एंटर कर रही थी। समझ में आई मेरी बात? मतलब ये फ्लाइज नॉन लिविंग चीजों से डेवलप नहीं हुई। क्लियर ये पॉइंट? जैसे
अरे मेरी बात तो सुन लो। इन साइंटिस्टों ने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। हमने एक बीकर लिया ओपन, उसमें मीट के कुछ पीस रख दिए, मटन चिकन जो भी श्रद्धा हो, ठीक है। अब इसको अपन ने कवर करके रख दिया, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इसको ओपन रखा, यहां पर फ्लाइज डेवलप हो गई, यस और नो? बट इसका मतलब था ना कि ये फ्लाइज मीट से डेवलप हुई है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? तो लुइस पास्चर ने बस ये प्रूव किया था कि जो लाइफ ओरिजिनेट होती है वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं होती। इस थ्योरी को बोला गया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ। बट ये थ्योरी भी फेमस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्वेश्चन ये नहीं था कि ये लाइफ कहां से आई, क्वेश्चन तो ये है जो ये लाइफ है वो आई कहां से एक्चुअली। समझ में आई मेरी बात? अर्थ पर जो पहली लाइफ है वो कहां से आई। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये फ्लाइज कहां से आ गई, कि ये नॉन लिविंग से बन रही हैं या फिर लिविंग से बन रही हैं, ठीक है ना। जैसे लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो फ्लाइज हैं ये यहां नॉन लिविंग से नहीं बन रही हैं, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये अंदर एंटर कर रही हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में आई कहां से, ये इंपॉर्टेंट था। समझ में आई मेरी बात? लिखो इसमें, बाय हिज एक्सपेरिमेंट, लिख लो पहले, लिख लो, नहीं पहले लिख लो। स्नैक से क्या हुआ? फंस गई वो क्या बाय हिज एक्सपेरिमेंट लुइस पास्चर प्रूव्ड, अगर ये फ्लाइज यहां पर होती तो आप इसको ऐसे प्रूव नहीं कर पाते कि ये इससे ऑरिजिनेट हुई है या बाहर से आई है। अगर ये इससे ऑरिजिनेट हुई होती तो ये यहां आसपास होती, यहां नहीं होती, तो ये बाहर से एंटर कर रही थी। तो ढकने वाला काम किया था ना इसने। अब कुछ तो नया करना ही था। बाय हिज एक्सपेरिमेंट लुइस पास्चर प्रूव दैट life came from pre-existing life. Life came from pre-existing life. Bracket में लिखना, theory of biogenesis. Theory of biogenesis. But he was not able to prove the origin of pre-existing life. He was not able to prove the origin of pre-existing life. He was not able to prove the origin of pre-existing life. इसको बना लो। हाँ, फायर। यहां पर ईस्ट एज अ न्यूट्रिएंट यूज हो रहा है, सो दैट वो लिक्विड फॉर्म में रहे। फ्लास्क बनाने, मटके नहीं बनाने। ये फ्लेम है, बर्नर। कौन सा बर्नर यूज करते हैं अपन लैब में? ट्राइपॉड अलग होता है बेटा, बर्नर को क्या बोलते हैं?
हम लोग स्कूल गए नहीं कभी 11 12 में कोई बात नहीं। इलेवेंथ में आए थे। हाँ। बच्चों लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सर एक मिनट। कुछ लोगों की कॉपी में ना यहां लिखा हुआ है, यहां बना दिया फ्लास्क, तो अब बस जैसे धुआं निकल रहा है उसमें से। उल्टी बाकी बता रहे हो। साइज कौन सी वाली लिखो, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। बस बस हो गया, लिखो लिखो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी बेटा इस चैप्टर, पढ़ो, परेशान होता हूं। ये मेरे लिए बोरिंग है, तुम लोगों के लिए नहीं है। थ्योरी ऑफ, अभी बंदर आएंगे, फिर एप्स। वो भी इंसान बन गया, क्यों नहीं बनते मतलब बनने से इंसान वो क्वेश्चन तो थोड़ी सी क्या बोलते किरण डाल रही है प्रकाश डाल रही लिखो बच्चों लिखो, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अच्छा वो मैंने लाइव क्लास नहीं लिया आज। लिखो, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ origin of life. It is the most accepted theory regarding origin of life, which was given by Oparin. Oparin के ब्रैकेट में लिखना, it belongs to Russia, and Haldane, it belongs to England. It is the most accepted theory regarding origin of life, which was given by Oparin, Russia, and Haldane, England. यहीं पर लिख लेना, Haldane was shifted to India. मन कर रहा था उसका। Haldane was shifted to India. क्यों? लिखो इसमें, according to this theory, life originate on earth
life was originated on earth. Life was originated on earth by non-living organic compounds. Non-living organic compounds. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. The three main conditions which were responsible for the three main conditions which were responsible for origin of life. The three main conditions which were responsible for origin of life were, first लिखो high temperature, second लिखो reducing atmosphere, high temperature, second लिखो reducing atmosphere, and third volcanic storms. अब एक पॉइंट कॉपी के टॉप पर लिखो. द फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ वर ऑरिजिनेटेड. द फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ वर ऑरिजिनेटेड 3 billion years ago. 3 billion years ago. एक और पॉइंट लिखो ऊपर. द फर्स्ट सेलुलर लाइफ was originated. The first cellular life was originated 2000 million years ago. 2000 million years ago.